तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हो। तो थ्रू ए फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमें ऐसी दो कंट्रीज़ का एग्जांपल देना है जो 19th सेंचुरी के दौरान बनी। तो इसके लिए हमने दो मेन कंट्रीज चूज़ की हैं। तो अगर हम पेज नंबर 19 पर आएंगे तो यहाँ पे हमें जो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी उसके बारे में हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है। सो यहाँ से लेकर इस पैरा तक, और जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो यहाँ से लेकर, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, पहले यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर वाले पैराग्राफ तक। तो ये था बुक से इन क्वेश्चंस का कंटेंट। तो अब मैं आप लोगों को गाइड से इसका आंसर दिखाना चाहूँगा। सो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो ये पहले इस क्वेश्चन की आंसर की एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो एग्जांपल्स देनी है हमें वो है एक जर्मन कंट्री की, और दूसरे एग्जांपल यहाँ पे इटली कंट्री की। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को अपनी नोटबुक से दिखाऊंगा। सो पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब मैं आप लोगों को आंसर समझाता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्टली अच्छे से दिख पाए। तो मैं शुरू करता हूँ। In the 19th century, the ideas of nationalism led to the formation of nation-states in Europe. The two important countries which developed into nations over 19th century were German and Italy. Both countries were divided into fragments. It took decades to unite them as nations. Both countries witnessed mass uprising and liberal revolutions for the formation of nation. Where first example, Germany. National feelings were widespread among middle-class Germans. In 1834, a custom union, Zollverein, was formed at the initiative of Prussia. It was joined by most German states. The union helped to abolish tariff barriers and reduced number of currencies from 30 to 2, which benefited traders, businessmen, and workers. The method strengthened German economically in one frame. In 1848, middle-class Germans liberals tried to unite German Confederation into a nation which will be governed by elected parliament. However, it faced a strong opposition from the King of Prussia, Otto von Bismarck, aristocrats, and military officials. Finally, the King of Prussia, Otto von Bismarck, took help of Prussian army and bureaucracy and fought 3 wars against Austria, Denmark, and France in 7 years, and finally at Palace of Versailles, Kaiser William I was proclaimed as head of German Emperor. तो जो हमारी दूसरी एग्जांपल है वो है on Italy. Italy, like Germany, Italy was too fragmented politically. In in seven in 7 states, of which Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. The north was under the Austrian Habsburg, center was ruled by Pope, and southern regions were under Bourbon and kings of Spain. The first step for unification was taken by Giuseppe Mazzini in 1830 under his society uh,
under his society called Young Italy. However, it failed to unify. In 1848, the king of Sardinia Piedmont, King Victor Emmanuel II, to unify Italian states through war in the eyes of the ruling elites of this region. Uh, a unified Italy offered to them the possibility of economic development and political dominance. Chief Minister of Sardinia Piedmont, Cavour, led a tactful alliance with France and succeeded in defeating Austrian forces in 1859. Apart from the regular troops, a large number of volunteers under uh, leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1860, they marched into South Italy and uh, the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of locals to drive out Spanish rulers in 1861. And in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as King of United Italy. तो हमें इस क्वेश्चन में दो कंट्रीज़ की एग्जांपल देनी थी जो 19th सेंचुरी के दौरान फॉर्म हुए थे। तो अगर हम पहली कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे इससे जल्दी में। 19वीं सदी के दौरान जो आइडिया था नेशनलिज्म का, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स फार्म हुए यूरोप में। तो जो दो कंट्रीज़ हैं इम्पॉर्टेंट जो इस टाइम में नेशन में फार्म हुई, तो वो थी जर्मन और इटली। तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में बटी हुई थी और इनको सदियां लग गई यूनाइट होने में। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनको मास अपराइजिंग और रिवोल्यूशन मतलब फाइटिंग वगैरह वो सब इनको फेस करना पड़ा नेशन को बनाने में। तो पहली एग्जांपल थी हमारी जर्मनी। तो जो जर्मन में है तो नेशनल फीलिंग्स जैसे इनमें अपराइज हुई थी उस दौरान 19th सेंचुरी से पहले जब नेशन फॉर्म हो रहा था। तो 1834 में जो है कस्टम यूनियन बनाया गया था जो कि प्रूशिया में बनाया गया था। तो इसको जो है बहुत जो मोस्ट जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया और इसकी वजह से जो है जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे वो इन पर जो है अबॉलिश मतलब बंद कर दिए गए। और जितने भी नंबर ऑफ़ करेंसीज थी जैसे कि 30 करेंसीज थी उनको रिड्यूस करके 2 करेंसीज किया गया। और जिससे जो है ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मदद हुई और इससे जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ मिली फ्रांस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिली जर्मन को एक फ्रेम में आने की मतलब यूनाइट होने में। तो 1848 में जो मिडिल क्लास थे लिबरल्स, तो उन्होंने जर्मन को यूनाइट करना चाहा नेशन में, तो जिसको जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करती, लेकिन ये फेल हुई क्योंकि जो किंग था प्रूशिया का ओटो वन बिस्मार्क जो कि जर्मनी का जो एक स्टेट था जो कि मोस्ट पावरफुल था वो था प्रूशिया। और उसका जो किंग था ओटो वन बिस्मार्क उसने जो है इस अपील को रिफ्यूज़ कर दिया और जितने भी आरिस्टोक्रेट्स थे और मिलिट्री ऑफिशियल्स उन्होंने भी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए ये जो है फेल हो गई। तो फाइनली जो किंग था प्रूशिया का ओटो वन बिस्मार्क उसने जो है अपनी प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 वार्स जो हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़े 7 सालों में। और फाइनली इनकी जो विक्ट्री है वो फाइनली इनकी विक्ट्री हो गई, जिसमें जो है वर्साइल्स में इनकी विक्ट्री जो है फाइनल हो गई पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, जिसमें कैसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ जर्मन एम्परर मंतखब किया गया। तो अब है हमारी इटली की एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि जर्मन में हुआ था तो वैसे ही
इटली भी हिस्से में बढ़ गया था। तो इसके 7 हिस्से थे, जिसमें सर्दिनिया पिडमोंट डोमिनेट था और इससे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे। तो जो नॉर्थ था इटली का, उसे ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग गवर्न करते थे। इसका जो सेंटर था उस पे पोप रूल करते थे, और जो साउदर्न रीजन्स थे उस पे बॉर्बन किंग्स की डोमिनेंस थी। तो जो पहला सिस्टम था यूनिफिकेशन का, ये ग्यूस्पी मैज़िनी की जो सोसाइटी थी यंग इटली, इनके द्वारा 1830 में उठाई गई थी, लेकिन ये फेल हो गई। और बाद में 1848 में जो किंग था सर्दिनिया पिडमोंट का, विक्टर इमानुएल सेकंड, तो इसने जो है इटली को इटालियन स्टेट्स इसको यूनिफाई करना चाहा वार के ज़रिए, जो कि सबके रूलिंग इलाइट्स के नज़रों में इन सब रीजन्स को। तो जिससे, और इसने जो है ऑफ़र किया था कि हम पॉसिबिलिटी देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और पॉलिटिकल डोमेन्स भी दे देंगे। और जो चीफ मिनिस्टर था सर्दिनिया पिडमोंट, जो सर्दिनिया पिडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर था केवर, उसने जो है टेक टू फुल अलायंस बनाई थी फ्रांस के साथ, और जिसकी बदौलत ये कामयाब हो गया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को निकालने में 1859 में। तो उसके बाद जो है जो रेगुलर ट्रूप्स थे सर्दिनिया पिडमोंट के, उनके अलावा जो है बहुत सारी तादाद में जो है ग्यूस्पी गैरिबल्दी के लीडरशिप के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े इस जंग में। तो जो 1860 में जो ये सोल्जर्स थे, इन्होंने मार्च किया साउथ इटली की ओर, और जो किंगडम था उन दो सिलिसीज का डिवीजन्स का, वहाँ पे ये जो है कामयाब हो गए, और इन्होंने लोकल्स की का सपोर्ट पाया, और उनकी मदद से भी जो है जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको वहाँ से निकाला। और फाइनली 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड को जो है इन्होंने किंग ऑफ यूनाइटेड इटली प्रोक्लेम इस्टेब्लिश किया। तो ये थी दोनों क्वेश्चंस की दोनों दो एग्जांपल्स इस क्वेश्चन की। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख गया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय।